تب یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی۔ یعنی زنا کی تمام، زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے، اور زنا سے روکنے والے ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہے، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا اپنے لیے چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی اعذار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آزار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا، اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا اسلام، میرا مذہب اسلام ہے، اس پہ ڈٹ جائے بس وہ کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں، اللہ کا حکم سب سے پہلے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت،
ताकत इल्ला बिल्ला, वो नहीं है मगर अल्लाह की मदद के साथ। तो ये भी जज्बा हमें सिखाया गया है पैगंबरों की तालीमात में कि हम अल्लाह से तौफीक मांगा करें और तौफीक मांग के अल्लाह पे छोड़ न दें कि बस अल्लाह ही जो कुछ करेगा। करना वो खुद से मेहनत करनी है, लेकिन निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है। और एक और नुक्ते की बात ये पता चली कि सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति ला यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचे तो उसके नतीजे में जेल मिली उनको। बाज़ दफा दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप शरीयत पर अमल करना शुरू करते हो तो बजाय कामयाबियों के नाकामियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मौके पे लोगों की चीखें निकलती हैं कि लो भाई, हम तो इस्लाम पर आए थे, दीन पर आए थे, बजाय इसके कि परेशानियां खत्म होती, परेशानियां तो और बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसे मौके पे हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये परेशानी ऐसे है जैसे यूसुफ को जेल मिली थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जो मिली है तो उसमें अल्लाह ने आपको वहां सब्र की भी तौफीक दी और वो जेल पेश खैमा बनी बहुत बड़ी तरक्की का। तो दीन पर अमल के नतीजे में जब आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह सब्र की भी तौफीक देता है अगर आप सब्र करना चाहो, और फिर वो आजमाइशें बहुत बड़ी तरक्की का जरिया बनती है। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए ना कि इधर दीन पर अमल किया उधर पैसे आना शुरू हो जाए, इज्जत और शोहरत मिलना शुरू हो जाए, फिर तो हर आदमी चलना शुरू कर दे। तो बाज़ दफा ऐसे होता है दीन पर आने के नतीजे में वक्ती तौर पर आजमाइशें आती हैं। तो ऐसे मौके पर ये कहना कि ये देखो अल्लाह ताला से शिकायतें शुरू कर देना, ये नेक लोगों का काम नहीं होता। और दूसरी बात ये भी हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफा आप दीन पे चलना शुरू होते हो तो फिर कोई आजमाइश नहीं आती, बल्कि परेशानियां फौरी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ये भी अल्लाह ताला बाज लोगों के साथ करते हैं कि आपने दीन पर अमल करना शुरू किया, अल्लाह ने तरक्की और फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। और बाज़ दफा ये भी होता है कि वक्ती तौर पर आजमाइशें बढ़ जाती हैं। तो दोनों मामलात में हमें मजहब को थामना है, हमने दीन से पीछे नहीं हटना। इस्लाम में अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने हमें दो तरह के अहकाम दिए। एक अकीदा सही कर लो, अकीदा तौहीद, मुशरिक की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब जो मुशरिकीन है वो कहते हैं अल्लाह ऐसा माज़अल्लाह जालिम क्यों है कि तौहीद परस्त आदमी थोड़ी सी नेकी करे उसको अजर मिलेगा, और जो मुशरिक है वो इतने सारी दीन की खिदमत इंसानियत की खिदमत करे कोई अजर नहीं है। तो ये क्या है भाई? अल्लाह जालिम जब होता है जब अल्लाह ने आपके पास तौहीद का ऑप्शन न रखा होता। अल्लाह कहता है शिर्क छोड़ दो तो आप तुम्हारी सारी नेकियां कबूल। तो शिर्क तो आपने जबरदस्ती इख्तियार किया हुआ है ना। तो लोग हम पे दबाव डालते हैं कि मुशरिक को भी जन्नती, भाई ये जन्नत हमने नहीं बनाई, जहन्नम हमने नहीं बनाई, हमारा काम है अल्लाह की बातें लोगों तक पहुंचा देना। अल्लाह कह रहा है मैंने मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया है। तो अल्लाह कह रहा है तो जन्नत बनाई किसने? अल्लाह ने बनाई है। तो पहली चीज अकीदा। नंबर दो आमाल। फिर आमाल में दो किस्म के आमाल है, एक जिस्मानी आमाल और एक दिल के आमाल, अखलाकियात जिन्हें अखलाक। देखो इस्लाम में अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करें। आज किसी ने मुझसे पूछा, अभी की बात है, बयान शुरू होने से थोड़ी देर पहले अमेरिका से हमारे एक रिलेटिव का फोन आया। उन्होंने कहा भाई मैंने तफसीर पढ़ी, मैं तो बहुत परेशान हो गया वो तफसीर पढ़ के। मैंने कहा क्या परेशानी? कहते हैं वो तो कुरान में आता है आबसा वता वल्ला अन जाअहुल आमा। हमारे नबी के बारे में आयतें नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना सहाबी थे, वो नबी की खिदमत में आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि सरदारों में बयान कर रहे थे, वो सरदार लोग आते नहीं थे काबू में, तो वो सारे सरदार बैठे हुए थे। इसी दौरान एक नाबीना सहाबी आ गए, नबी से बात करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नागवारी गुजरी और आपके चेहरे पर सलवटें आई। क्यों? आपको अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम का ये अमल नामुनासिब लगा कि इतने बड़े सरदार बैठे हुए हैं, ये तो अपने ही है भाई, इनको तो कभी भी बात कर सकता हूं मैं, ये इतने सरदार लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए अरब के, ये तो बात ही नहीं सुनते। तो इस दौरान अब्दुल्लाह बिन मक्तूम क्यों आ गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इश्काल हुआ। तो उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे लकीरें आई, सलवटें आई, और आपने अपने चेहरे मुबारक को ऐसे करके नाराजगी से फेर लिया। तो कुरान में नबी को तंबीह की गई कि ना 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 ना, ये जो अरब के सरदार लोग हैं ना, ये आपकी बात सुनना नहीं चाहते, इनको हिदायत हासिल करने का शौक नहीं है। और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम गरीब भी है, नाबीना भी, लेकिन भागते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो ठीक है, ये सरदार लोगों पर मेहनत करने से इस्लाम को फायदा तो होगा, क्योंकि सरदार ईमान ले आए तो सब ईमान ले आते हैं। तो इनमें वजह तरजीह ये है कि सरदार है, इनके ईमान लाने से पूरी कौम ईमान लाने का इम्कान बढ़ जाएगा। और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम सरदार नहीं है, लेकिन एक दूसरी चीज है, इनमें तलब नहीं है और उनमें क्या है, वो सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते नहीं है। तो जो सीखना चाहता है उसको पहले फोकस किया जाएगा, जो सीखना नहीं चाहता उसको दूसरे नंबर पर रखा जाएगा। देखो एक शख्स मेरे पास आता है और वो मसला पूछना चाहता है, मुफ्ती साहब मुझे एक मसला पूछना है कि नमाज में ये गलती हो जाए तो नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसको मैं नहीं बता रहा और उसको बता रहा हूं जो पूछ ही नहीं रहा, उसकी नॉलेज को मैं इंप्रूव कर रहा हूं, जबकि वो चाहता ही नहीं है, जबकि वो सीखना ही नहीं चाहता। यह इतवार का बयान है, लोग आ रहे हैं बयान सुनने के लिए आ रहे हैं, यहां बैठे हुए और मैं आपके सामने बयान नहीं कर रहा, मैं चला गया पकड़ पकड़ के बाहर लोगों को तबलीग कर रहा हूं, जरा यार बात सुन भाई, अपने अखलाक दुरुस्त कर ले। कह रहे यार मैं सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? नहीं यार तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं तू सीधे रास्ते पे आ जाए। तो आप लोग को आप परेशान हो गए ना, आप बोलोगे यार हम आए हैं सुनने के लिए,
इतनी दूर दूर से मुफ्ती साहब इधर हमें सुना नहीं रहे हैं और जो सुनना नहीं चाहता आप उसको सुना रहे हैं। तो नबी के पेश नजर तो हिकमत ये थी कि ठीक है ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये सीधे रास्ते पे आ गए तो पूरा मक्का हिदायत पे आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा ठीक है ये भी एक तरजीह है, इस बेस पर भी तरजीह दी जा सकती है, लेकिन अल्लाह की नजर में तलबगार को बेतलबों पे तरजीह दी जाएगी। जिसके दिल में तलब है, जो सीखना चाहता है, उसको पहले नंबर पे रखें, और जो सीखना नहीं चाहता उसको उसके बाद रखें। ये तंबीह की अल्लाह ताला ने। अब अल्लाह चूंकि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर रहा है ना, तो मुखातब के सीगे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ए नबी आपने ऐसा किया, ए नबी आपने, ना ना ना, अल्लाह ने गायब के सीगे इस्तेमाल किए। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे इंग्लिश में होता है ना भाई, हम जब ग्रामर पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर आजकल शायद इस्लाह चेंज हो गई, वही सिंगुलर के लिए जो गायब हो, थर्ड पर्सन का मतलब जो गायब हो, और जो मुखातब हो हाजिर हो उसके लिए यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब खिताब तो नबी से हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट नबी को खिताब करके यूं नहीं कहा कि नबी आपकी पेशानी पे बल आए, ना ना ना, अल्लाह ने फरमाया उनकी पेशानी पे बल आ गए और उन्होंने अपना चेहरा एक नाबीना से फेर दिया। तो अल्लाह तंबीह भी कर रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि महबूब को ऐसे ही तक की जाती है। अब वो मुझे कहने लगे, जो हमारे रिलेटिव जिन्होंने अमेरिका से भी थोड़ी देर बयान से पहले उन्हीं का फोन था, कहने लगे भाई ये तफसीर में लिखा हुआ है, ये तो गलत है, ये नबी के बारे में नहीं है, कुरान की ये आयतें बिल्कुल नबी के बारे में नहीं है, ये तो फला माज़अल्लाह फला काफिर के बारे में, क्योंकि नबी के बारे में तो कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी आपके अखलाक सबसे ऊपर। तो जब नबी के अखलाक ऊपर है तो नबी के चेहरे पे बल कैसे आ सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से अपना चेहरा फेर कैसे सकते हैं? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये अखलाक के मुनाफी नहीं है ये चीज। जो बहुत बा अखलाक होते हैं उनको भी कभी गुस्सा भी आ सकता है, किसी बात पे उनको नागवारी भी हो सकती है। आपके नजर में अखलाक की डेफिनेशन ही गलत है, तो इसकी बेस पे तफसीर ही पूरी चेंज कर दी। भाई ये क्या बात हुई यार, ये तो सारे मुफस्सिरीन हदीस से ये साबित है, ये नबी मुराद है इससे। तो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गजबनाक नहीं हो सकते, आप कभी किसी से चेहरा नहीं फेर सकते। ये अखलाक का तो हमारा बनाया हुआ तस्वुर है। हमारे नबी तो मैदान जंग में तलवार लेके भी निकले कि नहीं निकले? है भाई, आप तो मैदान जंग में तलवार लेके भी निकले, लड़ाई की आपने मैदान जंग में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई हुदूद भी नाफिज की है, आप गजबनाक भी हुए। आपके चेहरे अनवर गुस्से से सुर्ख हो जाया करता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजब आता। सहाबी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे अनार के दाने निचोड़ दिए गए हो। किसी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया ना कि आपने माज़अल्लाह खारजी था, उसने कहा आपने जो है वो अदल नहीं किया इस दफा माले गनीमत में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गजबनाक, और आपने फरमाया अगर पैगंबर अदल नहीं करे तो कौन अदल करेगा बताओ? यानी एक तरफ मुझे पैगंबर भी कह रहे हो। तो इसलिए अखलाक अपने दुरुस्त करने का जो कुरान जिस अखलाक को फोकस कर रहा है वो अखलाक जो इस्लाम ने सिखाए हैं। उसमें गुस्से के वक्त गुस्सा, मुस्कुराहट के वक्त मुस्कुराहट। नबी ने फरमाया ना बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल में भी ना पढ़े तो क्या मुस्कुराओ? ना ना, फिर उस पर सख्ती करो। तो ऐसे मौके पे बाप का डांटना, चीखना, चिल्लाना, कोई देख ले बोले लो भाई मुफ्ती तारिक मसूद को तो हम समझते थे बड़े बा अखलाक और हर वक्त अखलाक पे रिपोर्टें पेश कर रहे होते हैं और लतीफे सुना सुना के हंसा रहे होते हैं, आज तो देखो चंगेज खान बने गए, ये कैसे अखलाक है, चीख रहे हैं। भाई उस वक्त ना चीखना क्या है जब अल्लाह की हुदूद की पामाली की जा रही हो, तोड़े जा रहे हैं अल्लाह के हुदूद को। हाँ ये नहीं कि बिला वजह के हर वक्त चंगेज खान बना रहे। हदीस में आता है नबी जब घर में दाखिल होते थे मुस्कुराते चेहरे के साथ। आज कुछ लोग घर में दाखिल बाहर गटर के ढक्कन पे बैठ के लड़कों लौंडे लपाड़ों के साथ हंस रहे, घर में दाखिल होते ही बच्चे सहमना शुरू, बेगम भी परेशान क्योंकि उसको ऐसा लगता है चंगेज खान ने बगदाद पे दोबारा अटैक कर दिया। तो ये गलत है, लेकिन कभी कभार जब आपको पता है कि एक चीज गलत हो रही है और मेरे सख्ती करने से वो ठीक हो सकती है, तो ऐसे मौके पे सख्ती करना, गुस्सा करना ये बदअखलाकी नहीं है, बल्कि क्या है अखलाक। बाद लोग गैरतलेस होते हैं, वो गुस्सा ही नहीं आ रहा तो किसी बात पे। जल्दी से बात को समेटता हूँ, अखलाक अपने दुरुस्त करना ये बातनी अमल है। अखलाकियात में क्या है? हसद ना हो। अब इसको तो लोग अखलाक समझते ही नहीं है। किसी और की तरक्की को देख के आप जल रहे हो, कुड़ रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, ये क्या हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अखलाक अच्छे बोलो नहीं, अभी आप ठीक नहीं हो, अभी आप ठीक नहीं हो। देखने में आप नमाज पढ़ रहे होगे, तहज्जुद पढ़ रहे होगे, अल्लाह के सामने दुआएं मांग रहे होगे, उम्रे कर रहे होगे, बड़ा बानूर चेहरा होगा, आपकी खूबसूरत दाढ़ी होगी, बगैर क्रीम के ऐसा लग रहा होगा क्रीमें लगाई हुई आपने, और खुशबुओं में घूम रहे होगे, नाइस टू मीट यू, और बड़े अच्छे अखलाक से बात कर रहे होगे। लेकिन जमशेद के पास नई गाड़ी देखकर आपके पसीने छूट रहे हैं, ये कमबख्त मेरे साथ मैट्रिक किया हुआ, नंबर भी इस दिल में गालियां, इस बेगैरत के नंबर में मुझसे कम थे और आज गाड़ी लेके घूम रहा है और हम अपनी पुरानी पटपटी में। तो ये अखलाक है? ये दिल की हालत कौन जानता है? अल्लाह जानता है। इसका मतलब आप बाअखलाक अंदर से होता है। भाई नबी ने फरमाया ना, अला
इन्न फिल जसदी मुज़गा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जिस्म में एक लूथड़ा है गोश्त का जिसको दिल कहा जाता है, वो ठीक हो तो जिस्म से निकलने वाले अमाल ठीक, वो खराब तो आगे सारे अमाल बर्बाद। क्योंकि जब इंसान को जिससे हसद हो तो फिर आदमी बिला वजह उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, उसकी जायज तारीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। सियासी लीडरों में यही तो होता है। कभी आपने देखा कोई सियासी लीडर जो अपोजिशन, आप हुकूमत में, वो दूसरा अपोजिशन में, आप किसी सियासी लीडर की जायज तारीफ किसी दूसरे के सामने करके दिखा तो दो, जो जायज तारीफ हो। ना ना ना, वैसी उसमें ये बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा था। आपको जब किसी से बोल हो जाता है ना तो उसके हर अच्छे काम में कीड़े निकाले जाते हैं। अब ये क्या बताऊं यार, मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे तो हुकूमत की चंद पॉलिसियों के बारे में ना, तो मैंने कहा ये वाली पॉलिसी बहुत अच्छी है, बाकी तो मैं हुकूमत से बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ करता हूँ, ये काम खानदानी हो रहा है। और फिर मैंने उसके सबूत पेश किए। मैंने कहा देखो ये हो गया, ये हो गया। कहते हैं असल में ये काम तो किए लेकिन ये सिर्फ हुकूमत ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किए। तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हालांकि मुझसे बड़ा कोई तनकीद करने वाला शायद कभी खुशबू लगा के आए ना, तो जो तनकीदी काम है मिंबर पे बयान करने के नहीं होते, निजी महफिल में तो आदमी सब कुछ बोलता है। तो मैंने कहा ये वाला काम टाइट कर दिया। कह रहे नहीं, असल में ये काम टाइट किया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ताकि लोग समझें कि हम अच्छे हैं। मैंने कहा यार यही अगर तुम्हारा लीडर कर रहा होता तो ये तावील करते कि बेवकूफ बनाने के लिए। अपने वाले के बारे में जितनी बातें वो सब इखलास पर मबनी थी, दिल की अताह गहराइयों से उसने कौम की खिदमत। और मुखालिफ पार्टी में कोई अच्छा काम है तो पब्लिक को या तो वाज़ेह कराइन हो तो ठीक है मान लेंगे। तो ये हर जगह ही चल रहा है मेरे भाई। वो एक मैं अक्सर वाकया सुनाता हूँ। एक खातून से पड़ोसन मिलने के लिए आई, बहन तुम्हारी बेटी की शादी हुई है, दामाद कैसा मिला तुम्हें? ये चल रहा है सियासी लीडरों में आजकल। बिल्कुल ये सही अक्कासी की है सोसाइटी की। बेटा तुम्हें बाजी या बहन तुम्हें दामाद कैसा मिला? इतना अच्छा दामाद है बहन, क्या बताऊं, मेरी बेटी 12 बजे तक पड़ी हुई सोती रहती है, कुछ भी नहीं कहता उसको। अब तो कराची में सब ही 12 बजे तक, अल्हम्दुलिल्लाह लतीफा ही कैंसिल हो गया। अब कराची वाले कहेंगे तो सही है ना, 12 बजे सुबह सुबह उड़ी आती है। लोग तो 2 बजे कराची में उठ के नाश्ता कर रहे हैं। हमारे दोस्त को मैंने फोन किया दोपहर 2 बजे, मैंने कहा आ जाओ, जाना कह रहे मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ। मैंने कहा जल्दी नहीं हो गया कुछ, इतनी जल्दी नाश्ता? डॉक्टर की सेहत के खिलाफ है भाई, थोड़ा लेट करना चाहिए नाश्ता। तो 12 बजे तक मेरी बेटी सो के उठती है, मेरा दामाद उसको कुछ भी, बिल्कुल उसकी मर्जी की लाइफ दी है उसने। अच्छा बहन तुम्हें बहू भी मिली है, सुना है उसी दिन तुम्हारे बेटे की भी शादी थी, बहू कैसी है? कमबख्त 12 बजे से पहले उठती नहीं है सो के, 12 बजे तक पड़ी रहती है। और मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम बन चुका है, उसी के चरणों में बैठा रहता है। मैं कहता हूं उसको उठाए, 12 बज गए। आप इसको लतीफा समझ रहे हो, लेकिन हम सब की जिंदगियां इसी उसूल पे गुजरती हैं, समझते हो? जिससे दुश्मनी उसकी हर अच्छाई बुरी, जिससे दोस्ती उसकी हर बुराई अच्छी। तो ये खराबी बाहर की नहीं है, ये असल में टेक्निकल फॉल्ट कहाँ का है? गाड़ी में आवाज आ रही होती है ना, आपको बेवकूफ आवाज को बंद करने की कोशिश करें। तो ऐसे अलार्म, आप घड़ी का अलार्म बज रहा हो और आप अलार्म के ऊपर बैठ जाओ, अलार्म बंद होगा? तकिया रख दो, बंद होगा भाई? उसका बटन ऑफ करना पड़ेगा, जहां से बज रहे वहां से ठीक करो उसको। तो ऐसे ही मेरे भाई ये जो बुराइयां हो रही है ना, वो वाला उसकी हर अच्छाई भी बुरी और उसकी हर बुराई भी, अपने वाले की हर बुराई भी अच्छी। ये अंदर का टेक्निकल फॉल्ट है। अब गाड़ी बज रही है तो मैकेनिक क्या कहता है, भाई आवाज आ कहां से रही है? अब मैकेनिक ने बज रही है तो आप क्या करो, बजाय उसकी आवाज है ना, आवाज वो आपके कानों में उसने वो लगा दिया, अब नहीं बज रही। चेक करें, क्या कहते हैं? एयरपोर्ट कहते हैं उसको मेरे ख्याल में। मैं जब सोता हूं ना, आप अजीब मेरे सोने का मंजर है, मेरे साथ दोस्त बहुत हैरान होते हैं। मैं 2 पंखे चलाता हूं सोने से पहले। कनाडा से मैं एक मशीन लेकर आया। होता ये था कि कनाडा वगैरह तो सर्द ममालिक हैं, जापान भी ठंडा मुल्क है, पंखे नहीं चल रहे होते। अब पंखे ना चलने से होता ये है कि हम जब सो रहे हैं तो आवाज आ रही है। अब मेरे साथ दोस्त सो रहा है, उसको खराटे ले रहे हैं। अब मैं अगर मेजबान से बोलूं मुझे अलग कमरा लेके दो, उनका खर्चा बिना वजह का डबल। 2 बंदे हैं तो यार एक उधर सोएगा एक इधर सोएगा, इस बेड पे सोएगा, वो खराटे ले रहा है। इतनी बड़ी टेंशन मेरे लिए सफरों में, कोई खराटे ले रहा है, कोई देर से सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। जापान में जिनके घर में ठहरा था उनको मैंने कहा होटल छोड़ो यार, आपके घर में ये कमरा दे दो। अब मैं वहां आया तो उनके बच्चों की आवाज, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, मेरे मसाइल खड़े हो गए। उसका एक टेक्निकल हल निकाला मैंने। फिर हम सफर में इकट्ठे गए, हमारे कुछ दोस्त थे केपी के वगैरह 2-4 साल पहले, तो हमारे पठान दोस्त है, मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे हल बताया। मैंने कहा क्या हल है? उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे पंखा चलाने की वीडियो लगा दो। मैं जहां जाता था ना तेज पंखा चलाता था, सर्दी है तो कंबल लेके सो जाता था, पंखे की आवाज में बहुत सारी आवाजें दब जाती हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो पंखा भी नहीं है। उन्होंने कहा यूट्यूब पे पंखा चलाओ। यूट्यूब पे मैं गया तो बहुत सारे पंखों की आवाजें हैं, बिल्कुल वही आवाज होती है हमारे पंखे की। मैंने कहा यार दिमाग तो ये कहेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है पंखा, मुझे पंखे में अच्छी नींद आती है। कुछ लोगों को पंखे के साउंड
उनसे मोहब्बत होती है, उनमें मैं भी हूँ। चल रहा होता है ना, बड़ा मजा आता है यार। और पंखा जितना पुराना हो ना उतनी अच्छी नींद आती है कि वैसे चल रहा हो। एक जगह तो मैं गांव में बैठा हुआ था, उन्होंने एक पेडिसिल फैन ला के रखा, मुझे लग रहा था उनकी नानी की झेस का है ये, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, यही बात नहीं हो। पुराना सा पंखा ना, मैं उसके नीचे, मुझे लगा कि ये गिर जाएगा। वो पेडिसिल फैन नहीं होते डंडे वाले, और वो यूं हिल गिरा है। मैंने कहा भाई ये गिरेगा, वो कह रहे नहीं गिरेगा, ये हमारी बहुत पुराना है। मैंने कहा ये बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, और आप हैरान हो गए गिर गया। तो शुक्र है मैं नीचे करीब में लेटा हुआ नहीं था, मैं भी बात कर रहा हूँ और वो गिर गया। तो लेकिन वो रंग रंग के अपना बिल्कुल, अगर खामोशी हो ना, नींद नहीं आती इंसान को उसमें। मेरी है, हर आदमी का अपना अपना उसूल होता है। ट्रेन में कितनी अच्छी नींद आती है, ठका ठक ठका ठक ठक, उसी को आदमी आदी हो जाता है ना, ठका ठक सुन के। जहाज में कितना शोर होता है लेकिन लोग सो रहे होते हैं। शोर अगर कंटिन्यूसली एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ हो ना तो वो लोरी बन जाता है, वो फिर शोर नहीं रहता। हाँ, एकदम से कोई चीख रहा है आ करके और कोई नाक साफ कर रहा है, कोई खराट, फिर नहीं नींद आती इंसान को। तो जो मेरे दोस्त है खराटे वाले, उनको भी मैं कहता था कंटिन्यूसली अगर एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप खराटे लो ना तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, थोड़ी देर के बाद चेंज।